answer me. Okay, in between I will keep on asking you. Okay, or anybody can participate also in between, right? See, this is the story. Normally it may happen with most of us also. Okay, so story है अपने हीरो की. चलो हीरो का नाम रखना पड़ेगा. क्या रखें? बोलो बोलो. बबलू. बबलू. डन. अब बबलू की स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको. ठीक है. बबलू जो है उसके पापा, his father was serving in a farmhouse. He was supposed to take care of all the horses of farmhouse. Okay, every week he was supposed to keep all the horses outside. He used to wash them, clean them, he used to inject them, he used to give them medicines. Okay, and every day, twice or thrice, he used to give them food, water, and he used to take care of their shelter. That was his job in such a big farmhouse. Okay, it was a very big farmhouse, and Bablu was around 12 13 years of age. ठीक है, आपसे 2 साल छोटा रखा है, बराबर है. Now Bablu was about to complete his 7th standard. Okay, and every weekend Bablu used to come to the farmhouse. Okay, because weekend matlab, every Sunday he was having holiday in the school, so he used to accompany Papa. And many times he saw that whenever his father was taking a horse out now. Okay, so whenever they were in the shelter, proper shelter, that time they were matlab, his father was protected, but whenever he was taking them out on Sunday for cleaning and all, so sometimes horse were not liking it, and they used to kick his father. And there were incidents where his father was literally fell down on the floor, and it was very painful. And then again he used to stood up, and he used to stand aside, and washing and cleaning everything. Horse were not cooperating to his father. He was feeling very sad on those days कि ओ पापा को लग गया. And वो भी कई बार मतलब साथ साथ में खेलने का छोड़ के अपना पापा को हेल्प करने लग जाता था. सो मोस्ट ऑफ द संडे वो ये फार्म हाउस में आता था. कभी इधर उधर पेड़ पे चढ़ता था. वहां पे बहुत सारे स्विंग्स थे, राइड्स थी छोटी मोटी, तो वो सब खेलते रहता था. बट जिस दिन कभी पापा के साथ ऐसा हो जाए तो पापा को काम में भी हाथ बढ़ा देता था. ये उसका लाइफ का रूटीन था. Okay, and every day from the farmhouse, when his father used to go home, they both used to do a lot of chit chat, and they used to do dinner together. This was the routine. Now, sometimes, once in a month, kind of, okay, out of 4 5 Sundays, on one Sunday, the owner of the farmhouse, he used to come at the farmhouse on Sunday for doing party. Okay, many times his friends used to come, or whenever owner used to come na, he used to bring some toys for Bablu. Okay, some good clothes for his father. Okay, some sweets for the family member, and small favors to the family. Okay, so his father was feeling very happy, and was having that gratitude kind of feeling towards the owner. And so Bablu was also having the same kind of feeling. Okay, Bablu was feeling very happy whenever owner used to come. तो ऑनर उसको कई बार अपनी कार में राइड करने के लिए ले जाते थे. कभी ऑनर भी थोड़ी देर उसके साथ खेल लेते थे, बबलू के साथ मस्त बातें करते थे. तो बबलू को बड़ा मजा आता था. ऑनर आते थे तो वो भी खुश हो जाता था. अब एक दिन क्या हुआ कि ऑनर केम, एंड फार्म हाउस ऑनर केम, and his tire was punctured. तो he asked कि बबलू's father कि अंकल ये कर दो ना, जरा ये टायर लगा दो ना, चेंज कर दो ना. तो बबलू said let me do this, and Bablu started doing it. Now when Bablu was doing it now, and he was very smartly opening the nuts and everything, that time the owner saw all this procedure.
how come this little boy is so good at operating these balls and taking out and exact sense of which dot will go where? He was surprised. uh, he called, Bablu, come here. तुम ये पूरा टायर खोल के वापस लगा सकते हो और तुम्हें ये पूरा करना आता है? तो बबलू said yes. तो ऑनर asked how come? तो he said मैंने पापा को कई बार करते हुए देखा है, तो अभी मैंने सोचा कि एक बार मैं भी कर सकता हूँ. ऑनर ने पूछा, चुनी अंकल, ये कौन से स्टैंडर्ड में? तो अंकल बोले, मतलब बबलू के पापा बोले, जी मालिक, ये अभी 7वीं कक्षा में है. और ऑनर पूछा कि ये कौन से स्कूल में पढ़ता है? तो इन्होंने बोला ये पास ही की गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है. एंड ऑनर वाज so quick on his decisions. He said नेक्स्ट ईयर से, ओके, ये वेकेशन अभी होने वाला है, नेक्स्ट ईयर से आपका लड़का जो है वो ये पास की, मतलब अपने सिटी की जो सबसे बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, यहाँ पे पढ़ेगा. तो चुनी अंकल, मतलब बबलू के पापा, वो बड़े नर्वस हो गए, बट बोलते, मालिक मेरे पास कहाँ इतने पैसे कि मैं ये सब कर पाऊँ. मतलब वो थोड़े टेंशन में आ गए. तो ऑनर बोले, तुम्हें सिर्फ पढ़ाने भेजने का है, ओके, बुक्स, यूनिफॉर्म एंड एडमिशन तक कराने का काम मेरा. तुम कल इसको लेके जाओगे वहां पे, ओके, प्रिंसिपल को तुम्हें सिर्फ इतना बोलना है कि मैंने भेजा है, जस्ट मेरा नाम देना. तो जो बबलू के पापा थे वो बड़े खुश हो गए, क्योंकि वो बहुत गरीब थे, ओके, बराबर है. एंड नेक्स्ट डे उनको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी वहां जाने के लिए, पूरी रात वो सो नहीं पाए, बराबर है. और फिर नेक्स्ट डे उनको लगा कि क्या करें, हम जाए स्कूल में ना जाए. उनको थोड़ा अशेम काइंड ऑफ फीलिंग आ रहा था. कोई बता सकता है ऐसा क्यों? कम ऑन, ये कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है. सर क्योंकि वो इतने गरीब थे और वो इतनी बड़ी स्कूल में फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो थोड़ा ऑकवर्ड होता है कि इतनी बड़ी स्कूल में only I'll be such poor person, that is why. Yes, Diya, very well said, very well said, very well said. Anyone else would like to speak? Any other feeling? Okay. और दूसरा कि उनके पास है ना इतने अच्छे कपड़े नहीं थे पहनने के लिए कि वो स्कूल में ये कपड़े पहन के जाए. तो इट वाज वेरी हार्ड टू फाइंड आउट अ क्लॉथ जो स्टिच ना किया हो. ठीक है. तो समहाउ दे बोथ ड्रेस्ड अप वेरी नाइसली, कि कोई भी कपड़ा ऐसे मतलब ढूंढे, प्रेस करवाए क्लॉथ्स, थोड़ा मैचिंग नहीं था, बट दे मेड श्योर कि it was well dressed in their terms, right? Then they went to the school, and they asked principal peon that I मतलब wanted to we want to meet to the principal ma'am. Peon thought कि ये शायद बाहर कोई कचरा साफ करने वाले या ऐसे लोग हैं, तो immediately he refused कि अभी मैम फ्री नहीं है, ओके, 1 घंटे बाद आना. तो they sat for 1 hour, okay, and then they asked peon कि now it is more than 1 hour, now can you meet us to principal ma'am. तो he was wondering, बोला कि क्या काम है आपको. एंड देन बबलू के पापा को याद आया, अरे मुझे तो इनका नाम बोलना था. एंड बबलू के पापा ने बोला कि मुझे इन्होंने भेजा है. तो पियून तुरंत गया अंदर, ओके, और प्रिंसिपल मैम बाहर आई कि बोलो बोलो क्या काम था. एंड जैसे ही प्रिंसिपल ने देखा कि ये ऐसे लोग, पता नहीं ओनर ने क्या देख के इनको यहाँ भेज दिया होगा, तो वो भी थोड़ी सरप्राइज हो गई, अंदर बुलाया. एंड शी थॉट समथिंग इन हर माइंड. क्या सोचा होगा उसने, प्रिंसिपल ने, अंदर, वो अंदर बुला रही है प्रिंसिपल, एंड वो दोनों अंदर बैठने जा रहे हैं अभी चेयर पे. तो प्रिंसिपल के थॉट प्रोसेस कुछ चल रहे थे. कैन यू इमेजिन? यस पार्थ. सर ये फी कैसे टाइम पे भरेगी? ओके, ओके, ठीक है. और कोई? सर, हाँ, means she will be thinking that will they be able to means मतलब स्कूल का वो जो रेपुटेशन है वो रख पाएंगे. यस यस यस. सर, हाँ, सर वो सोच रहे होंगे कि इतने रिच पर्सन ने इन्हें क्यों भेजा है हमारे पास.
she must be Yes, thinking like that. सब लोग सही सोच रहे हो, ठीक है। तो अब ऑनर ने ये जो चुनी अंकल मतलब जो थे, उन्होंने बोला ये मेरा बेटा बबलू है और मालिक ने बोला है कि अब से 8वीं कक्षा में आपकी स्कूल में पढ़ाने का है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वाज रियली, अब तो वो कंप्लीटली आउट ऑफ द वो हो गई कि नाउ ये लड़का इतना मतलब, एंड पूछा कि आप क्या करते हो, तो बोलते हम बस ये पास ही की बस्ती में रहते हैं। तो प्रिंसिपल मैम से मतलब इतना इरिटेशन होने लगा उनको कि ठीक है बट ये आपका लड़का पढ़ लेगा क्या 8th में, हमारे यहाँ पे तो ऐसा सिस्टम है ऐसा। तो चुनी अंकल ने बोला जी मैम, मतलब आप पढ़ाओगे, मेरा बेटा पढ़ने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। तो प्रिंसिपल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था कि एडमिशन तो उसको देना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये स्कूल जो थी वो ऑनर की थी, ठीक है। तो अब जब ऑनर ने बोला है तो प्रिंसिपल मैम इसको एक ही सेकंड में किक आउट तो कर ही नहीं सकती थी, ओके। एंड शी सेड ओके फाइन, ये दिन से स्कूल स्टार्ट हो रहा है, आप आ जाना, ठीक है, और थोड़ा वेल ड्रेस्ड होके आना, ऐसा उन्होंने बोला। अब एडमिशन हो गया एंड एज पर द ड्यूटी, अब ऑनर ने भेजा है तो टू कीप द ऑनर हैप्पी उन्होंने बबलू को पूरी स्कूल दिखाई। उस दिन रात को बबलू सो नहीं पाया क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ऐसी स्कूल नहीं देखी थी, बराबर है। फिर थोड़े दिन के बाद संडे आया, और संडे आया तो ऑनर आए और बोला बबलू बेटा कैसी लगी स्कूल। तो बबलू तो मतलब बोले बोले थके इतना, अरे पता है वो स्कूल में तो ये भी ग्राउंड है, क्रिकेट का भी ग्राउंड है, वहां पे तो ऐसा भी है, और क्लासरूम में भी कलर वॉल्स है, एंड बोले जाए। तो ऑनर सेड कि चलो अभी हम तुम्हारी स्कूल की नई स्कूल अभी स्टार्ट होने वाली है, तो लेट्स गो फॉर द शॉपिंग। एंड अलग अलग कितने सारे यूनिफॉर्म्स, मतलब 3-4 पेयर्स यूनिफॉर्म के दिला दी, और जो वो बोलते हैं ना हाउस यूनिफॉर्म, वो भी 2-3 पेयर दिला दी, ठीक है। इतनी अच्छी अच्छी नोटबुक्स, ये वो स्कूल बैग, शूज सब दिला दिया, ओके। पूरी गाड़ी भर के शॉपिंग करके लेके आए। बबलू तो खुशी के मारे इतना पागल हो गया कि बात मत पूछो। पूरी रात वो सो नहीं पाया। पता है वो क्या करता था पूरी रात? कैन यू इमेजिन? कम ऑन। सर अपने यूनिफॉर्म और शूज को ट्राई कर रहा होगा। यस, नंबर 1 परफेक्ट। किसने बोला? आई थिंक जिंगर। यस सर। यस, देन सर वो यस सोच यस रहा होगा कि स्कूल जाके मैं क्या क्या करूंगा एंड ऑल दैट। वेरी वेल सेड जुवेरिया। और कोई? वो हर एक बुक, हर एक टेक्स्ट बुक खोल के देख रहा था, सारे कलर कलर पिक्चर्स, और बोलता है मम्मी ये देख ये देख ये देख। थोड़ी देर के बाद पापा को, पापा देखो मेरी ये बुक, कंपास, ऐसे सब उसने कभी देखा नहीं था ना अपनी लाइफ में पहले, ओके। तो उसके मॉम डैड थक के सो गए, बोले भाई अभी तू कर, तेरे को। वो रात को लेट सोया, ओके। फिर ही वाज ईगरली वेटिंग कि कब स्कूल स्टार्ट होगी, एंड फाइनली वो दिन आ गया जब स्कूल स्टार्ट हुई, ओके। एंड नाउ द फर्स्ट डे ऑफ बबलू इन 8th स्टैंडर्ड, स्कूल में आया, बराबर। अब सारे बच्चे आ गए थे, ठीक है। बबलू को क्लास नहीं मिल रही थी, तो वो उस क्लास में पहुंचा जहां पे सारे बच्चे बैठे थे। तो बबलू ने पूछा मे आई कम इन मैम, एंड मैडम ने ऐसे करके देखा, ओके, कि एक मैम, अब मैम ने देखा ना, जैसे ही मैम के दिमाग में क्या 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 चल रहा होगा, चलो 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 जल्दी। हाँ साक्षी, अनम्यूट करके बोलो। इतना गरीब बच्चा अच्छे अच्छे यूनिफॉर्म्स बैग के साथ कैसे, मतलब। यस, ओके। तो क्या आपको क्या लगता है वो टीचर को पसंद आया होगा? क्योंकि उसने इतने सालों से, ओके, शी वाज द सीनियर मोस्ट टीचर इन दैट स्कूल, और उसने हमेशा अमीर बच्चों को पढ़ाया था, बराबर है। तो टीचर को पसंद आएगा बबलू? व्हाट डू यू से? नो। नो, राइट, एंड सेम हुआ। बट करे क्या, क्योंकि स्कूल तो मालिक की थी। तो बबलू की तरफ देखा, कम, गुड मॉर्निंग, सीट ओवर देयर। जो क्लास बेंच थी ना कोने में टूटी हुई, गो एंड सिट ओवर देयर, ऐसा बोल दिया, ताकि
उसको देखना ना पड़े. And then she continued her class. Okay. And बबलू का तो बात ही मत पूछो, फुल फॉर्म में पार्टी, नए स्कूल, नई बेंच, कलरफुल बेंच. उसने ये नहीं देखा कि बेंच टूटी हुई है. Okay. He saw that okay, he's sitting on the new bench. Then colorful uniform, colorful books, colorful classrooms, new friends. और वो बहुत एंजॉय करने लगा. ओके, बट स्कूल टीचर जब भी क्वेश्चन और कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, बबलू सबसे पहले मैं बताऊं मैम, लाइक दैट. एंड व्हेनेवर ही यूज्ड टू रेज हिज हैंड, दैट स्कूल टीचर यूज्ड टू गेट इरिटेटेड कि ये फिर से मुझे इसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, लाइक दैट. बट बबलू को कोई फर्क नहीं पड़ता था. ओके, और बाकी सारे फ्रेंड्स जो थे ना, वो भी कभी कभी बबलू हाथ ऊपर करे, बट बबलू का कंटेंट एंड अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा था, तो वो लोग फिर भी कुछ ना कुछ मजाक उड़ाते थे कि बस्ती वाला बच्चा आ गया. कई बार क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होती है ना, जो वो बस्ती में रहा था तो बस्ती वालों जैसी होगी, है ना. तो सब लोग उसका थोड़ा मजाक उड़ा लेते थे. कोई उसके साथ ठीक से बात नहीं करता था, बट बबलू को इन सब चीज से कोई फर्क पड़ता नहीं था. ओके, वो तो हमेशा आता था, बड़ा खुश रहता था. ओके, एंड फिर थोड़े दिन हुए, वापस एक संडे को आया. ऑनर ने पूछा, बेटा कैसी चल रही है स्कूल? ही सेड, बहुत बहुत बढ़िया, मस्त चल रहा है सब कुछ. ओके, ऐसे थोड़े दिन बीत गए, थोड़े वीक बीत गए, एंड 2-3 मंथ्स हो गए. एंड अब जो स्कूल टीचर थी, उसका इरिटेशन लेवल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था. एंड फाइनली वो हमेशा इसके साथ पार्शियल बिहेव करती थी. ओके, इवन इफ ही वाज परफॉर्मिंग गुड. एंड अब बबलू की लाइफ का सैड डे आया. You can say the saddest day is going to come. She asked to all the students, children, now you have to submit me your essay. Okay, one essay of around 800 to 1000 words, and mentioning the title of your essay is My Dreams and the Plan How I Will Achieve Them. Okay, so you have to write what you are dreaming. Okay, and how will you achieve it, and what will be the life after 20 years as per your imagination. That is what you have to write. Matlab, he was right now around 12 13 years, 14 years you can say, and after 20 years when he will be around 34 years. So what type of life you will be having at the age of 34 years? That is what they were supposed to write, their dreams, their plans to achieve those targets and goals and those dreams. So these all things were supposed to write. Next day, she gave 1 week time, right? Then everybody started submitting one by one, and now Bablu was in real tension. Okay, one day passed away, second day passed away, third day passed away, fourth day he saw that half of the class has submitted that essay, and he was still not sure. So his father recognized that something is going in his Bablu's mind. तो he asked one question, बेटा all is well ना, सब कुछ सही है ना तुम्हारी लाइफ में? तो he said, पापा ये ड्रीम क्या होता है? ओके, और गोल क्या होता है? तो पापा ने बोला, देख बेटा, ये मेरा ड्रीम ऐसा था कि मैं मेरे बेटे को अच्छा खाना पीना एंड स्कूलिंग प्रोवाइड करूं. ओके, और ऊपर वाले एंड मालिक की दया से मेरे सारे ड्रीम्स पूरे हो गए. तुम्हारी बहुत अच्छी स्कूल हो रही है, हमारे घर में कभी खाने की कमी नहीं है, कोई हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें मेरे जो ड्रीम्स थे ना वो सारे पूरे हो गए हैं. ओके, मैं हमेशा चाहता था कि मैं तुम्हें अच्छा एजुकेशन दे पाऊं, तो मालिक की दया से और ऊपर वाले की दया से भाई मेरा तो सारा ड्रीम पूरा हो गया. अब तुम देखो तुम्हारे ड्रीम्स क्या है. ओके, ये मेरी लाइफ के लिए मैंने ऐसा ऐसा सोचा था, अब ये तुम्हारी लाइफ है. तो बबलू ने पूछा, तो मुझे क्या ड्रीम देखना चाहिए? तो पापा ने बोला, वो तुम्हारी चॉइस है, मैंने मेरे ड्रीम बताए. बबलू ने उस दिन रात को अपने ड्रीम्स देखे. उस दिन रात को जब पापा ने ये बात समझाई ना, तो रात को बबलू को अपने ड्रीम्स पता चले कि ओ ये सारे मेरे ड्रीम्स है. नाउ योर टर्न, वन बाय वन. उसने अपने ड्रीम्स में क्या क्या देखा होगा? Let's see who are good at the human touch kind of feelings.
सर वो अपने पापा को ऐसा काम करना नहीं चाहता था, मीन्स वो जो कर Yeah, very well said. Next. एक एक क्वालिटी बोलो सब. बस्ती Sir, से we अच्छे wanted घर to में रहना see चाहता था। एक मिनट पार्थ. बस्ती वाले घर से दूसरे कोई अच्छे घर में रहना चाहता हो। Okay. Third. सर उसके जैसे बाकी बच्चों के लिए वो स्कूल बनाना चाहता होगा जिसमें कोई डिफरेंशिएशन ना हो दूसरे बच्चों के बीच में। Nice one, Vaishnavi. Third. Fourth. सर ये सारे पॉइंट सही है. सर सारे पॉइंट सही है, बट कुछ और बातें हैं जो अभी आप पहुंच नहीं पाए हो. सर हाँ. सर वो अपने पापा की तरह सारे ड्रीम्स पूरे करना चाहता था। Yes, Mahi. Okay. Okay. सर Fifth. सर हाँ, कौन? मुस्तान. हाँ सर सर अच्छे से पढ़ के नौकरी करके पैसे ज्यादा कमाना चाहता था। उसके पापा के जैसा नहीं रह बस्ती में नहीं रहना चाहता था। Okay. 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 You can say that. No problem. Accepted. फिर भी ठीक है. चलो. Sixth. सर वो ओनर जैसा बनना चाहता था। ये कौन है? रुद्रा सर। रुद्रा, आई लव यू डार्लिंग. ओके. एंड यहाँ मेरी सर्च खत्म हुई. ठीक है. अब देखो, उसने ड्रीम्स शुरू किए. वो अपनी लाइफ में पापा को पूरा रिस्पेक्ट करता था, प्यार करता था, बट वो सबसे ज्यादा इम्प्रेस्ड अपने ऑनर से था, उसकी पर्सनालिटी से था, उसकी स्टाइल से था. तो उसने जो ड्रीम्स लिखे ना, वन डे आई विल बी हैविंग वर्ल्ड्स बिगेस्ट फार्म हाउस. क्यों? क्योंकि ऑनर के पास फार्म हाउस था. उसकी जान पहचान ऑनर से कैसे थी? फार्म हाउस से थी. ठीक है. अच्छा, अब ये फार्म हाउस में क्या होगा? इट विल बी द मोस्ट हाईली एडवांस टेक्नोलॉजिकल मतलब इक्विप्ड इंस्ट्रूमेंट्स, हाई टेक फार्म हाउस. व्हाई इज इट सो? कैन यू टेल मी क्यों हाई टेक फार्म हाउस? क्योंकि उसने अपने पापा को वो हॉर्स से लात खाते हुए नीचे गिरते हुए देखा था. काम खत्म करने के बाद रात को कई बार पेन के मारे पापा सो नहीं पाते थे. इसीलिए हाई टेक, ताकि पापा जैसे लोगों को वो अच्छे से संभाल सके, कि जो काम कर रहे हैं वो अपना काम भी अच्छे से कर पाए एंड थोड़ी टेक्नोलॉजी की भी हेल्प ली जाए. सी सोच, देख रहे हो? नेक्स्ट, उसको तो ये पता नहीं था कि ये ऑनर की स्कूल में पढ़ रहा है. ऑनर ने कभी बताया नहीं उसको, क्योंकि जरूरी नहीं समझा. तो उसने क्या सोचा? अब देखो, ये उसकी खुद की सोच कि जैसे मेरे ऑनर का बड़ा फार्म हाउस है, ऐसे मैं बड़ा फार्म हाउस तो रखूंगा ही रखूंगा, बट मैं बहुत सारी स्कूल्स खोलूंगा, हॉस्पिटल्स खोलूंगा, और मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां भी होगी, क्योंकि ऑनर के पास थी. ठीक है. एंड मैं बहुत सारा पढ़ाई करके, उसने अपना एक छोटा सा प्लान लिखा, और ऑन टॉप ऑफ इट मैं एक बहुत अच्छा आदमी बनूंगा. सिर्फ पैसे वाला आदमी नहीं बनूंगा, क्योंकि ऑनर था. ठीक है. एंड देखो, पापा के लिए लव और ऑनर का ऑनर से जो इम्प्रेस था, ये सारी बातें उसने अपने वर्ड मतलब सारे वर्ड्स में पेपर पे डाल दी. नेक्स्ट डे, ओके, रात को मतलब उठ के ड्रीम सारा लिख डाला. 2 बजे सो गया. फिर नेक्स्ट डे जाके सबसे पहले, मैम मेरा ऐसे. अब मैम से रहा नहीं गया. जैसे ही रिसेस पड़ा, तुरंत उठाया, उसका ऐसे देखा. रिसेस से खत्म हुआ ही क्लास में आई मैम. ओके. एंड मैम का गुस्सा देखो आप, वो शी वॉज आउट ऑफ हर माइंड. सबके बीच में बबलू को खड़ा किया एंड बोला, क्या बोला उसने? है ना, बबलू को बहुत खतरनाक झाड़ दिया. यू ब्लडी इडियट, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? डू यू हैव एनी सेंस? डू यू नो वेयर फ्रॉम वेयर यू बिलोंग टू? Okay, and see what you have written all this bullshit. Okay, do you even know how to achieve all these things? तो बबलू बहुत शॉक्ड हो गया एंड पूरी क्लास शॉक्ड हो गई. एंड देन मैम सेड, ये भाई साहब वर्ल्ड का बिगेस्ट फार्म हाउस बनाना चाहते हैं. फिर पूरी क्लास हंस रही थी. और अब बबलू का मतलब लिटरली पूरी क्लास के बीच में जो इंसल्ट हुआ, बबलू, सब लोग हंस रहे थे, मैम बोल रही थी. बाद में बबलू एकदम मतलब ट्रॉमा में चला गया. उस दिन तो बबलू ने रो डाला क्लास में. अब बबलू घर आया, खाना नहीं खा रहा है, अपने रूम में अंदर है. पापा बोले, क्या हुआ बेटा? बबलू बोल ही नहीं पा रहा है.
कि क्या बोलूं मैं आपको पापा। अब पापा ने उसको बहुत जबरदस्ती पूछा कि बोल बेटा क्या हुआ। तो बोलते कि मुझे मतलब मैम ने ऐसा ऐसा किया मेरे साथ। अब देखना, पापा पढ़े लिखे नहीं थे, ओके, हिज फादर वाज नॉट वेल एजुकेटेड मैन, एंड हिज फादर आस्क्ड हिम कि बेटा प्लीज चिल्ड्रन डोंट क्राई। ऐसा होता है लाइफ में, सबके साथ होता है, ओके। अब पापा ने क्या पूछा, देखो क्वालिटी है स्टोरी में, है ना, बहुत सारे पॉइंट्स है, एस्पेक्ट्स है जो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं आते हैं। तो पापा ने बोला कि बेटा आपको लगता है कि आप ये सारे ड्रीम्स अचीव कर लोगे? तो बबलू ने रोते रोते बोला, इतना रो रहा था बबलू कि हाँ मेरे को पापा पूरा भरोसा है कि मैं कर लूंगा। तो पापा ने बोला, अरे दोस्त क्यों टेंशन लेता है, कल जा फिर से स्कूल एंड मैम को यही पेपर दे, ठीक है, इसमें एक भी वर्ड मत चेंज करना, क्योंकि मैम ने उसको झाड़ते वक्त क्या बोला था पता है कि नेक्स्ट डे ड्रीम योर ड्रीम एंड देन गिव इट टू मी। ओके, ये सारे ड्रीम्स ड्रीम हो जाने चाहिए, हो सके तो यू राइट द न्यू ऐसे, ऐसा बोला था मैम ने। नेक्स्ट डे ये गया, पापा ने बोला ना सेम पेपर चिपकाने का, मतलब सेम पेपर, बोला मैम ड्रीम्स तो यही रहेंगे। मैम ने ले लिया पेपर, देखा एक वर्ड तक चेंज नहीं किया था इसने। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट मी दिस? ही सेड यस मैम। फिर मैम ने रेटिंग दे दिया, मार्क्स दे दिए, ओके। अब आपको बताइए मार्क्स क्या दिए होंगे पूरे क्लास के रिजल्ट में। इसने मैम ने क्या किया पता है, सब ये ऐसे को मैम ने क्या देखा, जबकि इसको मिलना चाहिए 10 आउट ऑफ 10, बट मैम ने 8 से 9th में जब इस लड़के को है ना बबलू को प्रमोट किया, प्रमोटेड, ओके, क्यों? क्योंकि उसके इसका ऐसे 3rd क्लास था, बाकी सब बच्चों को फ्लाइंग कलर से पास कर दिया, एंड अपना पूरा खुन्नस जो था वो इस लड़के पे निकाला। बबलू को फर्क नहीं पड़ता था, अपने 9th में गए ना, ओके, बबलू के लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट था, स्कूल में रहना इंपॉर्टेंट था। अब ये एक सीन खत्म हो गया, इंटरवल आया, ओके। अब स्टोरी आ गई कहा 20 साल आगे, सिर्फ 20 साल आगे नहीं, लेट इट बी या 15 to 20 इयर्स आगे चली गई स्टोरी। वो टीचर कोऑर्डिनेटर बन गई, फ्लोर सुपरवाइजर बन गई, कोऑर्डिनेटर बन गई, वाइस प्रिंसिपल बन गई, प्रिंसिपल बन गई, एंड नाउ शी इज somewhere in the core committee of trustee, okay, and this is her last year। और last year पे now she was about to retire from that entire teaching profession। तो she said कि पिछले 5 साल से उनकी कंट्री में एक फार्म हाउस बना था, which was the world's biggest farmhouse and highly advanced based on the latest technology। और ये लोग, इनकी स्कूल पिछले 5 साल से ट्राई कर रहे थे कि हमें यहाँ विजिट करना है, प्लीज हमें विजिट करने दो, हमारे बच्चों को एक बार आने दो, ठीक है। एंड इसने सोचा कि ये क्यों नहीं हो रहा है, मुझे हमको परमिशन क्यों नहीं मिल रही है, ओके, मतलब कंट्री की टॉप मोस्ट स्कूल वहां जाती है, तो हमारी स्कूल भी तो कंट्री की टॉप स्कूल है। एंड उसने एक मेल डाला, ओके, फार्म हाउस के ओनर को कि दिस इज, मतलब आई एम सर्विंग फ्रॉम लास्ट 30 इयर्स एंड दिस इज द ईयर वेयर आई एम गोइंग टू गेट रिटायर्ड एंड इट इज माय ड्रीम टू रिटायर्ड from your farmhouse, matlab you know, after visiting your farmhouse or giving a treat to all my teachers at your farmhouse, and then I want to retire। reply aaya farmhouse se, okay, next month on this and this date you can come along with your teachers, along with your children। she was so happy कि yes मैंने मेल डाला तो बात खत्म हुई, बाकी मेरे पहले जितने भी लोगों ने मेल डाला किसी से कुछ नहीं हुआ। अब वो दिन आ गया कि वो लोग गए फार्म हाउस विजिट करने के लिए, पूरा फार्म हाउस देखा, एक से बढ़कर एक टेक्निक जो थी वो बच्चों ने देखी, टीचर्स ने देखी, एंड जो हॉस्पिटैलिटी थी टीचर्स ने देखी ना, उससे तो टीचर्स इतने इम्प्रेस्ड हो गए। एंड प्रिंसिपल थॉट कि यार ये जिस बंदे ने बनाया है उसको तो मिलना पड़े, कि इतने सारे अच्छे आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आए कैसे। तो शी वेंट टू द डायरेक्टर्स ऑफिस एंड जाके बाहर रिसेप्शनिस्ट बैठा था, बोला कि मुझे डायरेक्टर से मिलना है इफ पॉसिबल।
तो उसको बहुत ईगो था, तो रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत मुंह पे बोल दिया कि डायरेक्टर किसी को बिना अपॉइंटमेंट नहीं मिलते। एंड प्रिंसिपल सेड कि जस्ट प्लीज रिक्वेस्ट ना, मैं आई एम सो एंड सो, मैं ये स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा कार्ड है, एक बार आप ट्राई करके देखो, अदरवाइज आई विल मीट हिम विथ अपॉइंटमेंट। रिसेप्शनिस्ट अंदर गया एंड अंदर से डायरेक्टर जेंटलमैन बाहर आया, रिसेप्शनिस्ट नहीं आया। दैट जेंटलमैन, द वन हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द फार्म हाउस, वो बाहर आया एंड बड़ी विनम्रता से बोला, गुड मॉर्निंग मैम, यस हाउ कैन आई हेल्प यू। तो प्रिंसिपल मैम तो मतलब बिलीव नहीं कर पाई थी कि ये मुझे मिलने के लिए बाहर आया, क्या बात है। एंड उन्होंने पूछा कि मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, ये जो कंसेप्ट से आपने बनाया ऐसे ऐसे, और डायरेक्टर ने कहा कि आपको चलो मैं कुछ और भी चीजें दिखाता हूँ, हम कैसे ब्रीडिंग करते हैं ये सब। तो ऐसे 10-15 मिनट घूमे, बातें की, डायरेक्टर ने हर एक चीजें इतनी अच्छे से समझाई और प्रिंसिपल से रहा नहीं गया। तो बोला कि सर कैन यू प्लीज टेल अस कि हाउ डिड यू थॉट ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि इतना इसके लिए तो बहुत बड़ा विजन चाहिए। एंड डायरेक्टर कौन था? बबलू। बबलू, यस। एंड नाउ बबलू की बारी आई बोलने की। एंड बबलू क्या बोला पता है? मैम, all this started from my 8th standard when I saw these dreams, and my teacher was my biggest inspiration because on the first moment when she read my essay, she rejected it, and my father was the backbone to achieve all these things. And वो ऐसे के स्टार्टिंग के जो लाइंस बोले उसने, और प्रिंसिपल को ईगो तो था, बराबर है, उसको वो वर्ड्स पढ़ के ही याद आ गया कि ये वो डोबा इंसान है जो बस्ती का कीड़ा मेरे क्लास में आ गया था। और जब इसने देखा कि हाँ ऐसा इंसिडेंट तो हुआ था थोड़े साल पहले, और ये वही लड़का है जिसने ये सब अचीव भी कर लिया, अब वो बहुत ऑकवर्ड कंडीशन में आ गई, ठीक है। एंड वो ये नहीं बोल पा रही थी कि वो मैं ही थी। उसने तुरंत बोला ओके ओके, नाइस टू मीट यू, एंड वो वहां से 9-2-11 हो गई, दफा हो गई। ओके, शी वाज नॉट इवन हैविंग द courtesy टू टेल हिम सॉरी। उस दिन रात को क्या हुआ उसके साथ, व्हेन शी वाज डूइंग हर इंट्रोस्पेक्शन, शी रियलाइज्ड कि मैंने ऐसे न जाने कितने बबलू जैसे बच्चों की बैंड बजा दी होगी, यू नो, मेरी एक्सपेक्टेशंस के कारण मैंने कितने सारे बच्चों के टैलेंट, उनकी क्वालिटी, इन सब का इंसल्ट कर दिया होगा, मर्डर कर दिया होगा। वो ये बात टॉलरेट नहीं कर पाई कि मैंने इस बच्चे के साथ कितना इनजस्टिस किया। अब शी कमिटेड सुसाइड दैट नाइट, क्योंकि उसके अंदर ना सॉरी बोलने की डेयरिंग थी ना कुछ। छोड़ो, ओके, नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स बबलू की लाइफ वाज रॉकिंग। बबलू की लाइफ आज भी बड़ी मस्त चल रही है, लाइफ में नए नए इश्यूज आ रहे हैं। ओके, सो बबलू अचीव्ड एवरीथिंग, बराबर है। ये बबलू जो है वो इंडिया का फेमस, सॉरी इंडिया मुझे नहीं बोलना चाहिए था वर्ड, वो एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है। आपको कभी जीके में चांस मिले, गूगल अंकल आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्टोरी मैंने इस तरीके से बोली है, ठीक है। तो जब आप अपना जीके पे काम करते होंगे तो आपको एक दिन मिल जाएगा ये बंदा कौन था, किसकी स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी। ओके, वो क्वेश्चन मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, बराबर है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो थे ना, यू नो, इसमें ये स्टोरी में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो एज ए टीचर हमें ध्यान रखना चाहिए व्हेन वी आर डीलिंग विद द चिल्ड्रन, एंड एज ए चाइल्ड आल्सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स, यू नो, वी शुड नॉट बी हैविंग एरोगेंस। बबलू ने लास्ट मोमेंट पे चाहता ना तो बबलू उसको कैसे भी किक मार के दे सकता था ना कि मैम यू गेट लॉस्ट फ्रॉम माय फार्म हाउस, बोल सकता था कि नहीं? हाँ, बट बबलू ने जो मम्मी डैडी ने सिखाया था ना, ओके, और ऑनर से वो जो सीखा था उन चीजों का यूज किया अपनी लाइफ में। उसने, बबलू को तो अच्छे से पता था ये वही है, ओके, बट उसने एक बार भी नहीं बोला कि मैम वो आप ही थे। बबलू डिड हिज जॉब कि मेरे पास कोई आया है विजिट करने के लिए तो मेरी पूरी ड्यूटी बनती है कि मैं अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूं, ओके। एक भी बार बबलू ने ऐसा नहीं बोला कि मैम आपने मेरी बैंड बजाई थी, याद है, मैं वही हूं, देखो अब मैं खड़ा हो गया, ऐसा नहीं बोला बबलू ने।
ओके एंड इसीलिए यू नो बबलू की बहुत सारी क्वालिटीज थी। तो लाइफ में आई विश मेरे पास अभी 50 बबलू है, ठीक है, आप भी बनना, बराबर है। सो किड्स, दिस वाज माय लास्ट क्लास विथ यू। अब पता नहीं मैं